Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. So, do you know, in the last homework I have given this page, but today we will do again because some students don't know how to do this, right? Some has completed, that's really good, but we have done in textbook also. This is same as textbook. ये textbook में से ही है, right? But शायद number change हो सकते हैं. Otherwise, this is same as per textbook. Now see the first question. First question में क्या है? Details of the children of the school going on a trip to Mount Abu from Ahmedabad in the bus are given below. Answer the following question on its basis. Means यहाँ पे जो बच्चे हैं वो माउंट आबू जा रहे हैं उसका लिस्ट दिया हुआ है, right? You have to find out the total students, that how many total students are going in a picnic. Now see, standard first 31 students, standard 2 30 students, in standard 3 43 students, standard 4 52, then standard 5 56. Now what you have to do? You have to do total. ये सारे का हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे, राइट? वो जानने के लिए कि टोटल कितने बच्चे हैं वो पिकनिक में जा रहे हैं. Now see, the ones place 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So 2 and then carry over 1. Now 5 plus 5 10, 10 plus 4 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 21. So 212. How many students are going in a picnic? We can say 212 children are going in a picnic. So here we are using trip. How many children are going on a trip? 212 children are going on a trip. So we can write like this. 212 children are going in a trip. Okay? अगर आपका सेंटेंस थोड़ा डिफरेंट है जब आपने होमवर्क में किया था, no problem. Now the next one is how many children will get seats if they are to be seated in 4 buses having 52 seats. अब हम क्या करेंगे कि जितनी सीट होती है उतने ही बच्चे बैठ सकेंगे. समझ में आया? जितनी सीट उतने स्टूडेंट्स. तो 4 buses and 52 seats. तो हम इसका क्या करेंगे? एक बस में 52 सीट्स है तो 4 बस में कितनी, वैसे करके हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, राइट? फिर हमें पता चलेगा ना कि टोटल सीट कितनी है. इफ वी कैन अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ सीट्स देन वी कैन फाइंड टोटल स्टूडेंट्स ऑल्सो. नाउ सी, 1 बस इज इक्वल टू 52 सीट्स, राइट? 1 बस में 52 सीट्स है. अब 4 buses, if there are 4 buses equal to, we don't know, right? 52 सीट्स अगर एक बस में है तो 4 बस का तो हमें पता ही नहीं है. अब देखो ये तो बहुत ही इजी है. हम अब तक क्या कर रहे थे? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 52 multiply by 4. So we will do this. 52 multiply by 4. Here we will do rough calculation. 4 2s are 8 and 5 4s are 20. So how many? 208. Understand? 208 seats. See how many children will get seats? 208 students will get seats. Here also you have to write statement. So 208 students will get seats, right? यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं. अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो थोड़ा बाहर चला जाए, नो प्रॉब्लम. नाउ सी, हाउ मेनी चिल्ड्रन विल लेफ्ट विदाउट सीट. अब देखो टोटल स्टूडेंट्स वी नो वेरी वेल एंड सीट्स का भी हमको पता चल गया कि कितनी सीट्स है.
तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। अगर हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ही हमको पता चलेगा कि कितने बच्चे बच रहे हैं, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 212 एंड नंबर ऑफ सीट्स नंबर ऑफ सीट्स ओनली 208, राइट। अब क्या आएगा यहाँ पे, लेफ्ट। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेफ्ट, क्योंकि ये जो सीट्स के बगैर मतलब कि जितनी सीट्स बाकी रही है वही बच्चे आएंगे। नाउ करेंगे हम इसका माइनस, राइट। हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन, तो ही हमको पता चलेगा कि कितने बच्चे बढ़ रहे हैं। नाउ 2 minus 8, it is not possible, so 2 cut 12 and here 0, right। Now 8 is given, 9 से 12 तक काउंटिंग करेंगे। 8 तो हमारे पास है, तो क्या आएगा, 9, 10, 11 and 12, तो कितना आ गया, 4। अब यहाँ पे 0 minus 0 will be 0 and 2 minus 2 will be 0. How many students? 4 students. How many children will left without seats? So we can write 4 students, or you can write children also, right? 4 children will left without seat. Four children will left without seat. Easy. So this is also very easy. But see here, right? ये थोड़ा सम है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अच्छे से. Now see over here. How many children will get seats if they are to be seated in buses having 35 seats? अब बस तो आपको पता है कि टेक्स्ट बुक में हम जब कर रहे थे तो स्मॉल बसेस आई थी। पहले डिसाइड किया था कि बिग बसेस आएगी, फिर स्मॉल बसेस आ गई। बट स्मॉल बसेस थी वो कितनी आई थी आपको पता है, 6 बसेस आई थी, राइट। इसमें भी हम 6 ही लेंगे। सो हाउ मेनी चिल्ड्रन विल लेफ्ट विदाउट सीट? अगर 35 आपको पता चला ना कि 6 कैसे आया, वी हैव कंसिडर फ्रॉम टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में भी 52 सीट्स वाली 4 बसेस का डिस्कशन हो रहा था, और फिर 35 सीट्स वाली कितनी आई थी, 6 बसेस। तो इसमें भी हम क्या लेंगे, 35 वाली 6 बसेस लेंगे। आई बात समझ में? तो पहले तो हमको अगर 35 सीट्स है और 6 बसेस, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि कितनी टोटल होती है, राइट, टोटल सीट्स। तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स। नंबर ऑफ सीट्स तो यहाँ पे दिया ही है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 35, राइट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बसेस। नंबर ऑफ बसेस हमने कहाँ से लिया, टेक्स्ट बुक में से, मल्टीप्लाई बाय 6। तो हमें 6 बसेस के टोटल पता चल जाएंगे, टोटल सीट्स कितनी होती है वो पता चल जाएगी, टोटल सीट्स, राइट। सो लेट्स डू 6 5s are 30, 0 and 3. Now 6 3s are 18, 18 plus 3 21. So टोटल सीट्स कितनी हो गई, 210। अब समझ में आ गया। फिर क्या है, हाउ मेनी चिल्ड्रन विल बी लेफ्ट विदाउट सीट? अगर 35 सीट्स वाली हमने 6 बसेस ली तो 210 स्टूडेंट्स आ सकते हैं, राइट। यहाँ पे कितने थे, आगे हमने किया तो 4 चिल्ड्रन थे ऐसे जो लेफ्ट हो रहे थे जब हम ये 52 सीट वाली 4 बस ले। अब यहाँ पे क्या हो गया, 35 सीट्स वाली अगर हम 6 बसेस ले तो 210 आ सकते हैं, और टोटल कितने हैं, 212, राइट। तो लेट्स फाइंड टोटल चिल्ड्रन। सी टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, 212, राइट। एंड टोटल सीट्स वो हमने अभी फाइंड किया, टोटल सीट्स कितनी है, 210। तो दोनों का हम ऐसे सब्ट्रैक्शन कर दे तो क्या बचेगा, लेफ्ट। मतलब कि जो स्टूडेंट्स बचे वही आएंगे,
तो देखते हैं कितने आते हैं स्टूडेंट्स. 2 minus 0, that means 2. 0, 1 minus 1, again 0, and here also 0. Only 2, right? So we can write 210 seat. 210 students will get seat and 2 will be left. See, पहला question है, how many children will get seats? 210. And how many children will be left? 2 only, right? So हम ऐसे लिखेंगे. So 210 children will get seats, right? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. एंड 2 children will be left without seat. Understand? This way you have to do. अगर आपने पेंसिल से किया है तो आप क्या करो, इसको इरेज करके वापस ऐसे लिख लो. ओके, सो इरेज करने में कुछ टाइम नहीं जाता है. ओनली इरेज एंड राइट, मतलब आपने प्रैक्टिस तो किया. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5. लेट्स रीड द क्वेश्चन. हाउ मेनी बसेस विथ 35 सीट्स आर नीडेड इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर 245. तो देखिए अच्छे से, पहले तो यहाँ पे आपको क्या दिया है कि कितनी बसेस, मतलब ढूंढना क्या है हमें, हाउ मैनी बसेस, राइट? कितनी बसेस हमको चाहिए विथ 35 सीट्स, राइट? कि 35 सीट्स वाली कितनी बसेस हमको चाहिए. इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर 245, अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो कितने हैं, 245 है. समझ में आया? तो टोटल चिल्ड्रन 245 एंड एक बस की सीट्स 35. तो आपको पता चल गया कि टोटल चिल्ड्रन दिया है और हमें एक बस का दिया है, हमको और ज्यादा बस का ढूंढना है. समझ में आया? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवीजन. 245 डिवाइड बाय अगर हम 35 करेंगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ बसेस. समझ में आया? सो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे. क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और वी विल राइट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, राइट? नंबर ऑफ चिल्ड्रन. Number of children, how many? 245, right? And how many buses with 35 seats? मतलब seats in one bus, right? Seats in one bus, मतलब कि एक बस is equal to 35. अब एक बस का 35 है, टोटल बच्चे 245 है. तो नंबर ऑफ बसेस हमको ढूंढना है कि कितनी बसेस होगी तो 245 स्टूडेंट्स आ सकेंगे, राइट? तो डायरेक्टली हम इसका डिवीजन करेंगे. 245 डिवाइड बाय 35. अब आपको इसमें 35 का टेबल, राइट? 35 का टेबल आना चाहिए. बट आप क्या करो, 35 का टेबल भी लिख लो या मल्टीप्लीकेशन करके 35 1 जा, 35 2 जा, 35 3 जा, वैसे करके आप काउंटिंग करो. तो 245 कहाँ पे आएगा पता है, 35 7 जार 245. आप मल्टीप्लीकेशन करके भी देख सकते हो, राइट? नाउ 5 minus 5 0, 4 minus 4 0 and 2 minus 2 also 0. तो हाउ मेनी बसेस, 7 बसेस, मतलब कि 35 7 जा क्या आएगा, 245. तो 7 बसेस होगी और 35 सीट्स वाली, तो ही 245 बच्चे आ सकते हैं, राइट? एंड ऑल द चिल्ड्रन गेट सीट. और यहाँ पे एक लिखा है ऑल द चिल्ड्रन गेट सीट. देखो यहाँ पे हमको फुल फिगर मिल गया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं है. इसका मतलब ऐसा है कि सारे बच्चे को सीट मिलेगी, कोई भी विदाउट सीट नहीं रहेगा, राइट? तो पहला हमने क्या ढूंढा है, हाउ मेनी बसेस विथ 35 सीट्स आर नीडेड. 7 बसेस with 35 seats are needed and all the children get seat, right? That we all know, all the children get seat because 245. So 35 7s are 245. So the
last statement is 7 buses with 35 seats are needed. Right? It is very easy. You have to write this sum in your litho also. Now see number 6. इसमें ये बहुत ही इजी है, बट आपको सिर्फ समझना है. अगर एक बार आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्विकली यू कैन गिव द आंसर. नाउ सी, इफ बस डज नॉट स्टॉप एनीवेयर, इसका मतलब है कि अगर बस है वो कहीं पर भी नहीं रुकती है तो इट विल टेक 6 hours टू गो फ्रॉम अहमदाबाद टू माउंट आबू. तो उसको 6 घंटे लगेंगे. समझो कि उसको 6 घंटे लगेंगे. समझ में आया? एंड माउंट आबू इज अबाउट 230 किलोमीटर फार फ्रॉम अहमदाबाद. तो वो 230 किलोमीटर अहमदाबाद से है. राइट? तो 6 घंटे में 230 किलोमीटर जा सकते हैं. इफ इट इज 7 o'clock इन द मॉर्निंग, अगर मॉर्निंग में 7 बजे है, राइट, 7 बजे को अगर हम चले, देन व्हेन विल दे रीच माउंट आबू. तो माउंट आबू कब पहुंचेंगे? अभी आपको अच्छे से समझना है कि 7 बजे और उसमें हम और 6 hours, तो इसमें तो हमको 12 तक काउंट करना है. फिर आगे कितने हैं वो हम देखते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल देखो कितने घंटे लग रहे हैं? 6. 1 2 3 4 5 एंड 6. तो यहाँ पे राइट ऐसे 6 hours. आप समझ रहे हो कि उसको ऐसे 6 hours लगेंगे. बट हमको 7 से काउंटिंग करना है तो हम कैसे पहुंचेंगे? 8 9 10 11 12 और उसके बाद तो 1 आ जाएगा. समझ रहे हो? तो कब पहुंचेंगे? 1 o'clock इन दी आफ्टरनून. क्योंकि जब मॉर्निंग में स्टार्ट किया था तो मॉर्निंग के 7 बजे, फिर 8 बजे मॉर्निंग में, फिर 9 बजते हैं, फिर मॉर्निंग में 10 बजते हैं, राइट, फिर 11, फिर 12 एंड फिर 1. जब 1 बजता है तो 1 o'clock होते हैं तो वो आफ्टरनून हो जाती है. राइट? तो 1 o'clock इन दी आफ्टरनून. समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये कहीं पर नहीं रुके हैं. और अगर हम स्टार्ट करें, अगर वो 7 o'clock को बैठते हैं तो 8 9 10 11 12, अब 13 नहीं 1. समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो 7 to 8, फिर 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12 एंड 12 to 1. तो 1 o'clock को ही पहुंचेंगे. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन बी. हियर यू हैव टू राइट 1 o'clock in the afternoon. Right? It is also very easy. So write this all sums in your litho carefully with good handwriting. आपको ये भी करना है और आगे भी आप देख लो. आप क्या करो, हमने लास्ट में जो होमवर्क दिया था मैंने आपको, तब बहुत सारे बच्चों ने ये कर भी लिया था. तो आप उसको वेरीफाई करो. ये जो आंसर्स है ना उसको वेरीफाई करो. अगर आपका अलग है तो इरेज करके वापस लिखो. इट्स ओके, आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगी. राइट? बट आपको कितने सम्स आज कंप्लीट करने हैं? यहाँ पे ये 4 है, 4 5 एंड 6. Only 6 exercises you have to complete in your litho and these are very easy. आप बार बार इसका प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा. राइट? थैंक यू.